چھٹی ہی سے کہہ رہی اب تشریف لا رہے ہیں واسط چودھری. واہ یار. ہمارے پیارے دیکھنے والا آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. دیکھیں نا اب کیسے سلم اور سمارٹ ہو گئے ہیں روزے رکھنے کی وجہ. آپ تو خیر پہلے ہی تھے. جی سر. مگر آپ بھی اب لگ رہے ہیں. تھینک یو. ہمارا سسٹم ہی ایسا لیکن اچھے لگ رہے ہیں ویسے بھائی آپ. ان کے ابو جو ہے نا ان کے سکول میں گئے. اچھا. تو ٹیچر نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو پڑھنے کا ذرا بھی شوق نہیں ہے. تو آگے سے ان کے پاپا کہنے لگے یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر شوق نہ ہوتا تو ایک کلاس 6 مرتبہ فیل ہوتا. واسے بھائی اپنے دوست نو کہندے نے کہ یار میرے والد صاحب میرے نال ہون گے, میرا رزلٹ چیک کر کے تو آنا. اگر میں ایک سبجیکٹ جو فیل ہویا تو کہنا پورے پنجاب والوں تینوں سلام. اگر میں 2 سبجیکٹ جو فیل ہویا پھر کہنا پورے سندھ والوں مینوں سلام. دوست نے رزلٹ چیک کیتا اور آگے انہوں نے کیا ہے پورے پاکستان والوں تانوں سلام. واسے بھائی دی نویں نویں شادی ہوئی تو بھابی انہوں نے کہندی واسے دیکھو 24 گھنٹے ہو گئے ہماری شادی کو. اگو چوہی صاحب کہندے دیکھ لو کل دی گل لگدی. ہے ہی پیارے نے واسے بھائی, کیا بات. انہاں دی نوکرانی نے انہوں فون کیتا صاحب جی وہ جلدی آؤ, پتہ نہیں بی بی جی نو کی ہو گیا, اکھاں انہاں دی اوپر ہو گئی نے, گردن مڑ گئی ہے, پتہ نہیں کی ہو رہا ہے. کہندے ایزی ہو جا سیلفی لے رہی ہوئے گی. ایک دفعہ موٹر بائک پہ جا رہے ہیں تو کہیں اچانک سے گرے تو جیب کے اندر فون تھا. اب آواز آئی ہے کڑک. کہنے نہیں یا اللہ کوئی پسلی ہو گئے. یہ تو خیر آپ نے آج کے دور کی بات کر دی. تمام لوگوں کو ابھی فکر لاحق ہوتی ہے کہ ہمارے ٹیلی فون کو کچھ نہ ہو جائے. آپ کون سا فون لینا چاہ رہی ہیں؟ فون میرے پاس آلریڈی ہے ایکس. کون سا لینا مجھے بتاؤ کون سا لینا. اکرم صاحب تسی لے کے دینا, تہاڈی ساری فیملی کو 33 ہے. اور شکر کرو ہن 33 آ گیا, نہیں تو آئس کریم والے کپاں وچ دھاگا پا کے گل کر دے کی پکا آلو پکا. آپ کون سا فون لے کے لینا چاہ رہے ہیں؟ آپ کون سا فون لیں گے؟ میں نیا فون آیا ہے میں وہ لینا چاہ رہی ہوں. کتنے کا ہے؟ یہی کوئی 2 لاکھ کا ہے. بس ساڑھے 3 کے گردے وکنے بس اور تو گل ہی کوئی نہیں. بس عید آ رہی ہے تو بہن نے خواہش کا اظہار کیا تو آپ کریں تو پوری. کیا بات ہے. جب چھوٹی بہنیں خواہش کرتی تو پھر کیا گردہ کیا پتا. میرے تے کان نہیں بند ہو گئے پرسوں سے, پتہ نہیں کی ہو. لیکن 2 منٹ لگتے میں چپیٹ مار دوں. میرے خیال سے بات خواہش پہ آ چکی ہوئی ہے, اس لیے جب تک آپ اس کا فیصلہ نہیں کرتے تب تک میں اپنے مہمانوں کو بلا کے ان سے بات چیت شروع کرتا ہوں. ہمارے پہلے مہمان پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ایم پی اے ہیں ابھی بھی, کیونکہ جمہوریت اپنے آخری دموں پر ہے اور اس دم کے اندر یہ صاحب ابھی تک ایم پی اے ہیں. کیا یہ رہیں گے مسلم لیگ نون کے اندر, یہ سوال ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں. آپ سب کی تعلیم میں جناب چودھری شبیر احمد. اور ہماری دوسری مہمان جو ہیں وہ خاص طور پہ کراچی سے تشریف لائی ہوئی ہیں, بہت ایڈونچرس بھی ہیں. پڑھا انہوں نے فیشن ڈیزائن تھا لیکن آخر میں بنی وہ ایکٹریس ہیں. آپ سب کی تعلیم میں محترمہ ماہی بلوچ. الیکشن کے زمانے آ رہے. ذرا وقت کے اوپر ہے کہ الیکشن کے زمانے آ رہے, دفاتر خالی ہوتے جا رہے. کہیں کانٹے کہیں پر گل کھلیں گے, ابھی تو بیج بوئے جا رہے ہیں. آج کل کی لڑکیاں حسن پہ ناز کرتی ہیں. آج کل کی لڑکیاں حسن پہ ناز کرتی ہیں, الف بے کا پتہ نہیں, انگلش میں بات کرتی ہیں. اکرم صاحب آپ مجھے دیکھ کے کیا ایسے کہہ رہے تھے؟ میں آپ کی بات ہی کر رہا تھا نا. شعر ہے جی ادبی, میرا تو نون لیگی شعر ہے آج. اچھا. جو دل کو اچھا نہیں لگتا وہ من کو بھا رہا ہے. جو دل کو اچھا نہیں لگتا وہ من کو بھا رہا ہے. نون لیگ کا ہر کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی میں کیوں جا رہا ہے؟ کمال, ایک دم بڑھیا. واہ واہ واہ.
तो शबीर साहब बताइए, पर्दा उठाइए, क्यों जा रहा है हर कैंडिडेट पीटीआई में? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह अभी आप देखें, आगे आगे देखिए। अभी आगे कौन कौन जाएगा? नहीं नहीं, इंशाल्लाह कोई भी नहीं जाएगा। टाई तो तुसी भी धरने वाली लाई भाईजान, ये इलेक्शन का माहौल ऐसे ही होता है, कहीं से आ रहे होते हैं, कहीं से उड़ के जा रहे होते हैं। बहरहाल फैसला तो इलेक्शन वाले दिन होगा, फिर मुस्लिम लीग नून ही आएगी। अच्छा जी, जिन्हों मर्जी वोट पाओ, इन्हों का ही निकलना है। मगर मुझे नहीं लगता कि इस बार ऐसा हो पाएगा। क्यों सर, आपके ख्याल में क्या इस बार भी ऐसा ही होगा कि जिसको मर्जी वोट डाले नून मैं लीग के निकले? आपको इतना बता दूं, पूरी कौम इंशाल्लाह देखेगी, पीएमएलएन जो है वही चॉइस है पाकिस्तानी कौम के पास। नहीं, मगर वो तो चले आपकी एक पार्टी की तरफ से आपका एक बनता भी है कि आप ऐसा कह रहे हैं, मगर मेरा सवाल ये था कि क्या ऐसा होगा कि जिसको मर्जी वोट डालेंगे तो नून लीग का निकलेगा? देखिए, वोट पीएमएलएन का है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस वक्त तक जो लोग भी जा रहे हैं इलेक्टेबल्स, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम तादाद में हमारे साथ खड़े हैं पीएमएलएन के साथ। तो वो जो इतने गए हैं वो क्या इलेक्टेबल नहीं, इलेक्टेबल्स ठीक है, वो लोग मखसूस लोग गए हैं। इसके बावजूद जब आप नंबर्स देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला मेजॉरिटी हमारे पास होगी। और वो इस वजह से भी है क्योंकि मैं टू बी ऑनेस्ट, जैसे मैंने आपके शो से पहले बता रहा था कि मैं पाकिस्तान से बाहर रहा हूं। मैं 20 साल पाकिस्तान से बाहर रहा हूं और मैं क्यों जी, election उसे पिज्जा बेचते किधर थे आप? मैं इटली रहा हूं जी। इटली में रहा बड़े, वो भी तकरीबन कुछ अब तो खैर रिसेंट काफी मिलते हैं, हमारे जैसे होना शुरू हमारे हो गए वो जैसे भी, ही है ना? ऑलमोस्ट हमारे जैसे ही हैं। बट लेकिन इस वक्त जो मैंने आके देखा है इन 4 सालों में, ग्रेजुअली बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। और किसी शोबे में भी आप देख लें, डिलीवर हुआ है, पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने डिलीवर किया, और उसी की वजह से आज वो कॉन्फिडेंस है लीडरशिप में भी। और मैं समझता हूं कि पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त तक जो इतने क्रिटिकल हालात होने के बावजूद अगर इतनी बड़ी तादाद अवाम की साथ खड़ी है मियां नवाज शरीफ और उनके बयानिए के साथ। आप जो कह रहे हैं कि मियां साहब के, मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ी है जो कौम, तो उस कौम के अंदर शहबाज शरीफ साहब शामिल हैं या नहीं है? बिल्कुल शामिल है। शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा था कि ये बयान कोई नहीं किया मियां साहब ने, और मियां साहब ने कहा नहीं नहीं मैंने किया है। तो कुछ ऑकवर्डनेस हुई उस वक्त आप लोगों को? नहीं, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे लेवल पे शायद वो हम उस तरह से समझ नहीं पाते। बेशुमार चीजें रोजमर्रा नहीं, के मगर मुझे मामलात सिर्फ में। इतना सा बताएं कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने क्यों तरदीद की थी उस बयान? देखिए, मियां शहबाज शरीफ साहब का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। शहबाज शरीफ साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? वो कहते यार कि मैं चाइना तो इलेक्शन लड़ांगा जी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। नहीं नहीं, डिफरेंट है पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? वो ये चाहते हैं कि इस तरह से एक तसादम की जो कैफियत है वो उस तरह वो से ना नहीं, हो। वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और मियां नवाज शरीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है? मियां नवाज शरीफ साहब, जाहिर है अगर आप किसी तसादम को चाहते दीवार हैं? के साथ आप लगाएंगे तो एक स्टेज पे उसके पास फिर और कोई चॉइस नहीं रहेगी। तो आप किस वाले पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हैं? मैं दोनों के साथ हूँ। दोनों के साथ कैसे हो सकते हैं? जरा ये मतलब बताइए, किसी ये कौन सा हद पॉइंट तक ऑफ मियां व्यू? नवाज शरीफ जहाँ पे सही बात करते हैं मैं उस बात पे उनके साथ खड़ा हूँ। कौन सी सही बात की उन्होंने भी आखिरी? नहीं, देखें, वोट के तकद्दस की जो बात कर रहे हैं, ओबियसली इतनी 22 करोड़ अवाम जिसको इलेक्ट करके भेजती है, तो आप ये वाले पॉइंट पे उनके साथ हैं कि? मैं बिल्कुल उनके साथ हूं कि देखें, इज्जत जो है वो सबकी एक जैसी है। ये नहीं है कि कोई हम में से जो इदारा है वो बहुत ज्यादा मुकद्दम आप उसको हैसियत दें। और ये जो भी आखिरी बयान दिया मियां साहब का, इसमें आप उनके साथ हैं नहीं है? नहीं, बयान मेरे ख्याल में ये राइट टाइम नहीं था, या उसको इंटरप्रेट उस तरह से मियां साहब किया ने जा गलती रहा है। की ना? मेरे ख्याल में इस स्टेज पे ये गैर जरूरी बयान था। ये गैर जरूरी बयान था, नहीं देना चाहिए इससे था। मियां इज्तनाब करना साहब, चाहिए। आपकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आपको ये बयान नहीं देना चाहिए था। आप 20 साल आपने बताया आप जी, मैं बाहर हूं। आपके पास नेशनैलिटी ड्यूल? मेरे पास नेशनैलिटी नहीं है जी, मेरे पास इवन इंडेफिनेट भी नहीं है। मैंने आपके पाकिस्तानी नेशनैलिटी, जिसकी वजह से आप पार्लियामेंट के बिल्कुल मेंबर पंजाब असेंबली हैं, ऐसे ही। क्यों नहीं आपने रखी भी ड्यूल नेशनैलिटी? बस यूं समझे शुरू से ही मेरा ना उस तरफ कभी ध्यान गया। मैं पाकिस्तानी, नहीं, मगर आप 20 साल पाकिस्तान से बाहर इटली में रहे तो आपका कभी हुआ नहीं इटली की आप नेशनैलिटी रखते हैं? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੁਝੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਾਲਾ। मगर नहीं, वैसे क्यों नहीं आपने रखी? एक तो ये है कि मैं बहुत से ज्यादा लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं और 20 साल से रह रहे हैं, लेकिन उनके पास नेशनैलिटी नहीं है। तो उसकी एक वजह, आपको ऑफर हुई थी? नहीं, ऑफर तो आपने खुद अप्लाई करनी आपने होती अप्लाई है, नहीं आप की? एलिजिबल हैं आपने तो अप्लाई नहीं की? मैंने अप्लाई नहीं की। आपने अप्लाई नहीं किया, आप पाकिस्तान वापस आ गए? मेरे इवन 3 भाई मेरे साथ रहे हैं। हम यूं समझें कि पॉलिटिकल क्राइसिस जो थे, हम चौधरी बरादरान जो थे गुजरात के हैं, उनके अगेंस्ट हमारी पॉलिटिक्स रही है, और उन्हीं की वजह से बहुत अर्ली एज में मेरी फैमिली जो है उसको टारगेट किया गया, मेरे वालिद साहब का मर्डर करवाया गया। तो उसके बाद हालात इस तरह के पैदा हुए कि हम सब भाइयों को पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा। तो हम 4 भाई इटली में रहे हैं और चारों के पास नेशनैलिटी नहीं है। चारों के पास चारों के नेशनैलिटी पास नहीं है? नेशनैलिटी कोई नहीं है, आपके लेकिन पास अकामा है? नहीं जी, कोई आपके पास अकामा तक नहीं है? नहीं जी, मेरे पास मतलब वीजा मुझे मिल जाता है जब भी मैंने जाना तो होता फिर है। आपके ख्याल में अकामे की क्यों जरूरत होती है? देखिए, अकामा, हमने उसको अकामे को इतना बड़ा एक बना लिया है हवा, वो ऐसी कोई चीज नहीं है। अकामा यूं समझे कि अगर सर, आप, बात सुने, आपका ताल्लुक गुजरात से है, जी जी ठीक है? गुजरात एक छोटा शहर, ठीक है, उसके अंदर आपका नवाही इलाके से ताल्लुक है। जी जी, आप 20 साल
रह कर आए हैं इटली के अंदर। जी, जी। जब आपको अकामे की जरूरत नहीं पड़ रही और आपके वीजे वैसे ही लग जाते हैं, तो आपको अजीब सा नहीं लगता कि एक अरबपति आदमी जो है उसको अकामे की जरूरत हो? वीजा तो उनके भी लग जाने वीजा चाहिए। प्रोसेस अब इतना इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। अभी आप देखें आपके पार्लियामेंटेरियंस ख्याल में वैसे मियां साहब का दुबई का वीजा रिजेक्ट हो सकता है? नहीं, दुबई का वीजा रिजेक्ट वाली तो कोई बात फिर नहीं है। अकामे की जरूरत क्या थी? नहीं, मेरे ख्याल में फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग की वजह से शायद वो समझते होंगे कि हर दफा उनको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। बेशक उसका प्रोसीजर इतना सर कॉम्प्लिकेटेड ਉਹ ਕਾਮੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਾਲਨ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। वैसे ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अकामे की जरूरत ऐसी क्या पड़ी? माही, आपके ख्याल में क्या जरूरत पड़ी अकामे की ऐसे? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा अकामा होता क्या है। इतनी देर से मैं यही सोच रही हूँ कि अकामा क्या होता है। अगर आपने पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम या फॉरेन मिनिस्टर बनना हो तो आपको उसके लिए अकामे की जरूरत होती है। अकामा कोई एक्ट, अब दुबई वाले आपको अकामा देते हैं और उसके बाद आप पाकिस्तान के वजीर आजम बन सकते हैं या फॉरेन मिनिस्टर बन सकते हैं। दुबई वाले देते हैं। हाँ, दुबई वालों से क्लियरेंस करानी पड़ती है पहले। सब्जी वाले को आधा किलो भिंडियां लवो नाल एक कामा दे देंगे। एक अकामे के लिए अच्छा, इनकी पंजाबी बहुत मुश्किल है। ये आपको ये बात इल्म में थी आपके या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं थी ना। तो नहीं देखिए अभी कितनी मुश्किल शिक है, तो अब ये कितना मुश्किल हो जाता होगा कामा हासिल करना फिर वजीर आजम बनना। वाकई बहुत मुश्किल आपके है। ख्याल में अगला वजीर आजम कौन होना चाहिए पाकिस्तान का? अपने सच्चे दिल से बता दीजिए आज, ना देखिए कि आपके साथ कौन बैठा है। मैं पीटीआई के साथ थोड़ी बहुत मुझे ठीक चीज़ है, समझ में आती है। पीटीआई के साथ है तो इमरान खान होने तो इमरान खान होने चाहिए। तो इमरान खान को वजीर आजम बनने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? अकामे की जरूरत हाँ पड़ेगी। जी, जमाने के यारों चलन है निराले, कोई भूख कसोले कोई ज्यादा खा ले, कोई पार्टी अपनी पर से डाले, को कीचड़ कोई दूसरों पे उछाले, जिसे मौका मिलता है वो लूट खा ले, मेरे मुल्क को कौन डीजे संभाले। आई एम सॉरी, मेरी प्रेडिक्शन गलत सी। चलो कोई नहीं, अगों इलेक्शन भी होने ने ते उन्हां दे रिजल्ट भी ते होने ने।